Hello students, today I will discuss some concepts of current electricity with you. Okay? First of all, color coding of carbon resistors. Color coding of carbon resistors. Okay? Now, since the resistors, they are the important devices which are used in electronic circuits. Okay? Now, since how to identify the value of the different resistors? The value of the different resistors is coded in the colorful rings which are marked over the resistors. Okay, sirs? So, I am giving you the order of the colors. Okay, copy it down, and then I will tell you how to write out the values of the resistances. Okay, the order of the colors is very important. Now, so it is the code. B. Roy, ROI, Roy, Great Britain, very good wife. Okay. The order of the colors is black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey, white. Okay, sirs. Clear? Then, sirs, silver, say, gold, silver, and no color. Got it? Now the order is, we have to start with 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 9. Okay? About these 3, gold, silver, and no color, I will discuss in the later part. Okay? Then since 10 raised to power 0, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4, 10 raised to power 5, 10 raised to power 6, 10 raised to power 7, 10 raised to power 8, and then 10 raised to power 9. Okay? Now let us suppose that we are having the carbon resistor, or simply you can say we are having a resistor. And since the colorful rings, let us suppose it is the first ring, then let us suppose it is, say, the second ring, then let us suppose it is, say, the third ring, and then we are having the fourth ring. Clear? Now let us suppose, say, that the first color is, say, gray. First color is, say, gray. Second color is, say, red. Third color is, say, blue. And the fourth band
fourth band, let us suppose say it is silver. Got it? Okay, बात समझ आ गई बेटा? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ. ओके, अब बड़े ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट 3 कलर्स हैं, इनमें फर्स्ट 2 कलर्स जो होते हैं वो फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का आइडिया देते हैं. सो द रेजिस्टेंस आर, इट विल बी, बेटा फर्स्ट कलर इज ग्रे. ग्रे को देखे, ग्रे के अगेंस्ट नंबर है 8, तो फर्स्ट digit is 8. Then the second color is red. Red के against value is 2. We have to write 2. We are going to read it as 82. बात समझ आ गई? First 2 colors क्या देंगे? First 2 significant digits देंगे. Okay? अब थर्ड कलर क्या देगा? थर्ड कलर मल्टीप्लायर देगा. ये जो 10⁻⁵ लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लायर्स की वैल्यूज. तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का साइन डालें. थर्ड कलर देखें, थर्ड कलर इज ब्लू. ब्लू के लिए द वैल्यू इज 6. सो ब्लू कलर के लिए वैल्यू इज 6. और अगर हम आगे जाएं तो ब्लू कलर के लिए द वैल्यू इज 10⁻⁶. तो थर्ड कलर मल्टीप्लायर. तो बेटा ये इधर जो लिखा है ये मल्टीप्लाई है, तो 6 यूज नहीं करेंगे हम, 10⁻⁶ यूज करेंगे. 10⁻⁶. गॉट इट? तो ये तो बात हो गई फर्स्ट 3 कलर्स की. ये फर्स्ट कलर, फिर ये सेकेंड कलर, फिर ये थर्ड कलर. ओके, अब बात आ गई स्टूडेंट्स फोर्थ कलर की. फोर्थ कलर टॉलरेंस देता है. टॉलरेंस हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं. टॉलरेंस हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखते हैं. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स गोल्ड के लिए याद रखें ±5%, सिल्वर के लिए ±10%, और नो कलर के लिए ±20%. तो गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, नो कलर के लिए 20%. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स द फोर्थ बैंड इज से ऑफ द कलर सिल्वर. ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज ±10%. व्हाट इट सेज. तो बेटा ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? यूनिट लगाएं ओम. ओके, तो स्टूडेंट्स कार्बन रेजिस्टर्स में रेजिस्टेंस कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है. समझ आ गई बात? इसको कॉपी करें, कॉपी करें. डन ना. अब स्टूडेंट्स हम जिस टॉपिक की बात करेंगे ये 1 मार्क का पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है. बात समझ आ गई? हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑन टेम्परेचर. तो ध्यान से देखें. डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस of the conductor on temperature. ओके स्टूडेंट्स, अब बड़े ध्यान से पहले मेरी बात दोबारा सुने. स्टूडेंट्स हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की डिपेंडेंस स्टडी करेंगे टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है, तो पहले
कंडक्टर के इंटीरियर में होता क्या है, कंडक्टर के इंटीरियर में वाइब्रेटिंग कैटायंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गॉट इट सर? ओके, नाउ अब ध्यान से देखिए, कंडक्टर के इंटीरियर में वाइब्रेटिंग कैटायंस हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब ध्यान से सुनिए, when the conductor is maintained at some temperature, then on the account of temperature the conductor will possess some thermal energy. ओके, तो बेटा कंडक्टर का थर्मल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि दैट थर्मल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द कैटायंस एज वेल एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब कैटायंस इस थर्मल एनर्जी को कैसे यूज करेंगे? कैटायंस इस थर्मल एनर्जी को यूज करते हैं और वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे। तो वो जो थर्मल एनर्जी है, इट विल अपीयर एज द वाइब्रेशनल एनर्जी इन द कैटायंस। गॉट इट? अब बेटा जो थर्मल एनर्जी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स तो मोशन में होंगे। बात समझ आ गई? अब जो कैटायंस हैं वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए बेटा, साथ साथ कॉपी करते जाएं, मैं आपको टाइम दूंगा, पहले से कॉपी करने जल्दी से। डन? अब ध्यान से देखिए, let us suppose say, let us say the cation, and this cation is vibrating in this limit. मतलब बेटा ये कैटायन अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करेगा। कैटायन का वाइब्रेशन का जो लिमिट है वो मैंने यहां पे मार्क कर दी है। क्लियर? अब लेट अस सपोज से यहां पर ये कोई दूसरा कैटायन, बेटा ये दूसरा कैटायन भी वाइब्रेट करेगा। समझ आ गई बात? अब यहां पर मान लेते हैं कि ये कोई तीसरा कैटायन, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, और हम बोल रहे हैं कि ये जो स्टोरी है, मतलब द कंडक्टर इज मेंटेन्ड एट सम लोअर टेम्परेचर। गॉट इट? एट some lower temperature T1, at some lower temperature T1, so ये पिक्चर है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज से ये इलेक्ट्रॉन था जो रैंडम मोशन में था, ये इलेक्ट्रॉन इस कैटायन के साथ कोलाइड करता है, इस कैटायन के साथ कोलाइड करता है एट टाइम t = 0। ये बात समझ आ गई? अब उसके बाद मान लेते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कैटायन के साथ कोलाइड करने के बाद डिफ्लेक्ट हुआ, और डिफ्लेक्ट होने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस वाले कैटायन के साथ कहीं पर कोलाइड करता है। ठीक है? तो बेटा इलेक्ट्रॉन ने दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कुछ तो डिस्टेंस कवर किया, मतलब कुछ तो टाइम स्पेंड किया। तो जो टाइम स्पेंड किया, दैट इज से द रिलैक्सेशन टाइम, उसको मैं टॉ से डिनोट कर रहा हूं। ये बात सिंपल है, समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए, ये जो सेकंड कैटायन है, ये सेकंड कैटायन वाइब्रेट कर रहा था इस लिमिट के बीच में। तो ये सेकंड कैटायन कहीं पर भी किसी भी तरीके से अभी तक इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में नहीं आया, बीच में नहीं आया। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन इस कैटायन के साथ कोलाइड करने के बाद, फर्स्ट कैटायन के साथ कोलाइड करने के बाद सीधा सेकंड कैटायन के साथ कोलाइड करता है। इट इज द स्टोरी एट सम लोअर टेम्परेचर। पहले इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें, उसके बाद क्या होता है? एट सम हायर टेम्परेचर से T2। अब हम हायर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। याद रखें, ये पहला फिगर है, ये एट सम लोअर टेम्परेचर T1 लिख करके अंडरलाइन कर लेना और इस फिगर को कॉपी कर लेना। ठीक है? फिर उसके बाद एट सम हायर टेम्परेचर T2 लिख करके अंडरलाइन करना। ठीक है? अब जो फिगर स्केच करने वाला हूं उसको कॉपी करना दोबारा से। ठीक है? मैं तो इसी में कर दूंगा, आप उसमें ना करें, दोबारा करें। अब ध्यान से सुनिए, जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है,
या कंडक्टर मेंटेन किया जाता है एट सम हायर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ने से थर्मल एनर्जी कंटेंट कंडक्टर का इंक्रीज हो जाएगा। थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से स्टूडेंट्स बोलेंगे कि कंडक्टर के जो कैटायंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। अब उनका एनर्जी कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से कैटायंस का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैटायंस के अंदर ज्यादा एनर्जी आ गई है, तो अब वो और ज्यादा रेंज में वाइब्रेट करेंगे। बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स तीनों कैटायंस का रेंज ऑफ वाइब्रेशन ऑलमोस्ट मैंने सेम रखा हुआ है। अब रेंज बढ़ने से क्या होता है, लेट अस सपोज से हमने यहां पर सभी कैटायंस का रेंज बढ़ा दिया इक्वल अमाउंट्स में। अब आप देख रहे हैं कि वही पहले वाली सिचुएशन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कैटायन के साथ कोलाइड करता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कैटायन से डिफ्लेक्ट होकर सेकंड कैटायन के साथ कोलाइड करने के लिए निकलता तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला कैटायन कहीं ना कहीं बीच में आ चुका हो। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई बात? तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन इस वाले कैटायन के साथ कोलाइड करने की बजाय, इस वाले कैटायन के साथ कोलाइड करने के बजाय इस कैटायन के साथ कोलाइड करेगा जो कि कहीं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हो। यह बात समझ आ गई? तो फ्रेंड्स अब इलेक्ट्रॉन ने दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में डिस्टेंस पहले से कंपैरेटिवली कम कवर किया। बात समझ आई? तो फ्रेंड्स टाइम भी कम लगेगा। तो अब की बारी जो टाइम लगा दैट इज सपोज से टॉ डैश। बात समझ आ गई? तो क्या हुआ कि रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हुआ। ओके, अब रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हुआ तो रिलैक्सेशन टाइम का रेजिस्टेंस से क्या लेना देना है। अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन इट वाज रो एल बाई ए, याद होगा। और बेटा रो क्या था, रो था m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर इनटू टॉ। m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन था, n नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, e चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन था, टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था। ये बात समझ आ गई? अब कंडक्टर के इंटीरियर में क्या होता है, कंडक्टर के इंटीरियर में तो बड़े सारे कैटायंस होते हैं, बहुत सारे कैटायंस होते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स भी नो डाउट बहुत सारे होते हैं। तो अब स्ट्रेस वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड जब हायर टेम्परेचर में बढ़ेगा तो स्ट्रेस कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टर्म यूज करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द वाइब्रेटिंग कैटायंस इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमें कैसे पता लगा, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले जितना टाइम लग रहा था दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में वो टाइम रिड्यूस हो गया। पहले पड़ी बात, यहां पर भी आप देख सकते हैं। अब बेटा जब टॉ रिड्यूस हुआ, रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हुआ, तो रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होने की वजह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, तो हुआ क्या, हुआ ये कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, इसकी वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, इसकी वजह से बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ओके, अगर हम बात उल्टी करते हैं कि पहले कंडक्टर का टेम्परेचर ज्यादा था, बाद में कंडक्टर को, उसी कंडक्टर को हम किसी लोअर टेम्परेचर में मेंटेन करते हैं, तो स्विच के रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। बात समझ आ गई? एक काम करें, मैं आपको ये सीक्वेंस दे देता हूं, वर्ड्स में दे देता हूं, तो आप उसको नोट करें, पहले ये फिगर कॉपी कर लें। यस फ्रेंड्स, कॉपीड। अब ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स मैं आपको ये वर्ड्स में सीक्वेंस दे रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट करें। विद द इंक्रीज, मैं इंक्रीज की कंडीशन डाल के बोलूंगा, ठीक है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर,
there is the increase in the thermal energy of the conductor, due to which there is the increase in the vibrational amplitude. There is the increase in the vibrational amplitude of the vibrating cations, due to which the relaxation time of the free electrons will decrease. As a result of which, there is the increase in the specific resistance or the resistivity of the material of the conductor. Hence, the resistance of the conductor increases with the increase in temperature, and vice versa. ओके, तो ये स्टूडेंट्स जितना मैंने अभी किया था उसको मैंने वर्ड्स में डाल दिया. अब अगर स्टूडेंट्स ये रीजनिंग आती है 1 मार्क में, तो आपने क्या लिखना है? 1 मार्क में सीधा लिखना है, हैश डाल के लिखें, हैश डाल के लिखें. चलिए मैं बोर्ड पर लिख देता हूं. With the increase in temperature of the conductor, the collision frequency of the free electrons with the vibrating cations increases. With the increase in the temperature of the conductor, the collision frequency of the free electrons with the vibrating cations increases, and there is the increase in resistance of the conductor. बात समझ आ गई? ओके, कॉपी करें. कॉपी करें. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What is the basic cause of resistance of the conductor? सोचिए, सोचने के बाद अपने आप को आंसर दीजिए. ओके, now says the expression for temperature coefficient of resistance. अब ध्यान से सुनिए. Let us suppose since we are having the conductor, and I'm saying that R1 is the resistance of the conductor when the conductor is maintained at some temperature say Q. Okay, clear? Then we are talking about the same conductor
Now the conductor is maintained at some higher temperature से T2. टेम्परेचर बढ़ा, नो डाउट एक्सपेंशंस होती हैं कंडक्टर में, लेकिन वो जो एक्सपेंशंस है नेग्लिजिबली स्मॉल हैं, तो उन्हें हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका है. सो वी आर इंटरेस्टेड इन द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ओनली. ओके, now let us suppose say R2 is the resistance of the same conductor when the conductor is maintained at some higher temperature say T2. Got it? जल्दी से इसको कॉपी करें, हेडिंग को कॉपी करें. हो गया? लिखें, सपोज R1 be the resistance of the conductor at some lower temperature T1. T1 lower temperature है, ठीक है, and R2 be the resistance of the same conductor at some higher temperature T2. Got it? अब मेरी बातें ध्यान से सुने. अभी डिस्कस किया है मैंने आपके साथ कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है रेजिस्टेंस चेंज होता है. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. बात समझ आ गई? यहां पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट डेल्टा आर, ऐसे लिखें, लेट डेल्टा आर, let delta R be the increase in the resistance of the conductor and delta T ऐसा लिखे, delta T be the increase in temperature of the conductor. ओके, अब देखते हैं कि स्ट्रेस ये चेंज इन रेजिस्टेंस है ये किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया था कि टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता है, अभी एक पैरामीटर और रहता है, उसको ध्यान से देखें. Now this delta R is found to be directly proportional to R1. मतलब स्विस कंडक्टर का पहले से जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा एट लोअर टेम्परेचर, बेटा राइज इन टेम्परेचर, सॉरी राइज इन रेजिस्टेंस भी उतना ही आएगा. ऐसा क्यों? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है मतलब उतने ज्यादा वाइब्रेटिंग कैटायंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन्स थी. क्लियर? अब ऐसे में अगर हल्का सा भी टेम्परेचर में चेंज हुआ तो नो डाउट वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा, जिसकी वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज होगा. समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? Okay. Then this delta R is directly proportional to delta T. Delta R is directly proportional to delta T. Delta T is the rise in temperature. अभी मैंने आपको बताया था कि since resistance of the conductor टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. क्लियर? तो ये दो पैरामीटर्स हैं, तो इन दोनों पैरामीटर्स को करते हैं फ्यूज. सो दिस डेल्टा R is directly proportional to delta R is directly proportional to say R1 multiplied with delta T. दोनों को फ्यूज करें. Now to remove this proportionality sign you have to put the proportionality constant. The proportionality constant which we are using is alpha. The proportionality constant which we are using is alpha. The proportionality constant which we are using is alpha. Let us say R1 multiplied with delta T. Got it? अब बेटा ये जो अल्फा है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एंड इट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. पल्ले पड़ गई बात? अल्फा इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, okay, and is called temperature coefficient
of resistance of conductor. पल्ले पड़ गई बात? ओके, कॉपी करें जल्दी से, कॉपी करिए। डन? ना Since SI unit of temperature coefficient is Kelvin inverse, symbolically ऐसे लिखना है, ठीक है। other units can be degree Celsius inverse. Other unit can be degree Celsius inverse. Got it? Now, so as delta R, it is written as say R2 minus say R1. The higher value of the resistance minus the lower value of the resistance. Delta T is written as say T2 minus say T1. The higher value of temperature, T1, lower value of the temperature. Pasting both these values over here, we get. कॉपी करें। दोनों वैल्यूज को प्लेस करते हैं। सो R2 माइनस से R1 इज रिटन एज से अल्फा मल्टीप्लाइड विद R1 मल्टीप्लाइड विद T2 माइनस से T1। ये बात समझ आ गई? R1 को राइट हैंड साइड पे लेके जाए। सो दस R2 इज रिटन एज से R1 प्लस अल्फा R1 T2 माइनस से T1। गॉट इट? R1 को कॉमन लेके आए। So R2 is written as R1 is made common 1 plus alpha into it is T2 minus a T1. Okay? It is the relationship between the higher value of the resistance, the lower value of the resistance and the change in temperature. Got it? ये बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? ओके? Also, I am giving you one more expression. मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं, मिटा चुका हूं, ठीक है? So alpha is written as say delta R divided by R1 multiplied with delta T. इसको ऑलरेडी हम लिख चुके हैं पहले, फिर एक बार कॉपी करें। तो फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कॉपी करें। डन? आई होप कि न्यूमेरिकल्स आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं, अभी तक हमने जितना करंट किया है न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है, सीधा फॉर्मूला ओरिएंटेड है, तो इसलिए मैंने अभी तक कोई आइडिया नहीं दिया उनका, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स का एक आइडिया दे दूंगा। Now, combination of resistances. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जैसा कि फ्रेंड्स हमने कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन में किया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन स्किल्स सभी सेम होने वाली हैं। आइडेंटिफिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूं, क्लियर? ओके? जो कैपेसिटर्स में थी वही रेजिस्टर्स में होती हैं। तो फर्स्ट Series combination.
तो स्टूडेंट्स जब आप कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो जैसे कैपेसिटर्स के लिए अप्रोच किया था आपने, बिल्कुल वही अप्रोच यूज करनी है, बस रिजल्ट्स में डिफरेंस होता है। कैपेसिटर का रिजल्ट और रेजिस्टर्स का रिजल्ट वो डिफरेंट होता है, लेकिन अप्रोच सेम होती है जब हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि क्या सीरीज में है और क्या पैरेलल में है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज से let us say the resistance R1, let us say the resistance R2, and let us say the resistance R3. Okay, this resistance R1 is said to be connected between the points say A and C. The resistance R2 is said to be connected between the points say C and D. The resistance R3 is said to be connected between the points say D and E. Got it? Now, let us suppose say, let us say the applied potential difference. Okay, V is the applied potential difference. कैपेसिटर से केस में स्टूडेंट्स याद होगा बैटरी के पॉजिटिव पोल से पॉजिटिव चार्ज निकालते थे, तो अभी बैटरी के पॉजिटिव पोल से करंट I निकालना है। करंट I वायर के अंदर से फ्लो करेगा। जब वायर के अंदर से करंट I फ्लो करेगा तो हर रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो करेगा। गॉट इट? हर रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो करेगा। गॉट इट? चलिए मैं एक काम करता हूं, I ऐसे मार्क कर देता हूं। I is the current flow in this particular direction. सेम करंट फ्लो कर रहा है। एंड when you are solving the equivalent resistance between A and E, तो जैसे कैपेसिटर्स में मूव करना सिखाया था सर्किट के अलॉन्ग, वैसे ही मूव करना है। आप ए से ई जाएंगे, जब आप ए से ई जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है और बीच में कहीं पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं आती है। तो सिर्फ जब एक ही पाथ एग्जिस्ट करे और बीच में कोई ब्रांचिंग ना आए तो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? कैपेसिटर्स में चार्ज फ्लो था, यहां पर करंट फ्लो बोला जाता है, तो मैं वो करंट फ्लो आपको दिखा रहा हूं। हर रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो करेगा। अब देखिए, रेजिस्टर R1 इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C, तो स्ट्रेस करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है? करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम A टू E इन द सर्किट, तो करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब पॉइंट A का पोटेंशियल ज्यादा है, पॉइंट C का पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल्स की वैल्यूज अगर अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पक्का है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं आपके पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। Now, V2 is the potential difference between the points C and D. V3 is the potential difference between the points D and E. Got it? इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मार्क करना है। समझ आ गई बात? काम क्लियर हो गया? Now let us suppose say that it is the point say N and it is the point say N. Okay? तो अभी स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। स्किल्स जो कैपेसिटर्स में सिखा दी गई थी वो सारी स्किल्स यहां पर होल्ड करने वाली हैं। ठीक है? ओके? क्लियर? ओके। अब जल्दी से ये फिगर कॉपी करें। डन? स्टूडेंट्स कंसिडरेशंस लिखवा रहा हूं, नोट करें। कंसिडर द रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 connected in series with each other between the points A and E. Full stop. Let V, capital V, be the applied potential difference between the points A and E, and I be the current drawn from the battery. Full stop. Same current flows through the different resistances present in the series combination. Got it? अब ध्यान से सुनिए। स्विच कैपेसिटर्स के टाइम पर एक स्किल बताया था कि बेटा वो वाले पॉइंट्स जो वायर से कनेक्टेड हैं सेम पोटेंशियल पर होते हैं। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट M को देखिए, पॉइंट A को देखिए, वायर से कनेक्टेड है। पॉइंट N को देखिए, पॉइंट E को देखिए, वायर से कनेक्टेड है, तो दोनों सेम पोटेंशियल पर है। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर? सो वी कैन से दैट दिस Vn it will be equals to VA
and thus Vn is equals to Ve. Got it? अब ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करते हैं तो we get thus Vm माइनस से Vn it is equals to Va माइनस से Ve. ये भी बात समझ आ गई. अब ध्यान से देखिए Vm माइनस से Vn को अगर आप देखते हैं सिर्फ m और n को देखिए तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V. Va माइनस Ve का वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो पॉइंट ए से लेके ई तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है. पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होती है स्केलर क्वांटिटी. सो इट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3. सो इट इज V1 प्लस से V2 प्लस से V3. सो इस दोनों वैल्यूज यहां पर इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं. वी गेट दिस V इज इक्वल्स टू V1 प्लस से V2 प्लस से V3. बात समझ आ गई? ओके. अब बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखे. पहले एक काम करें, कॉपी करें क्योंकि मुझे मिटाना होगा. कॉपी करिए. डन. नेक्स्ट लाइन में लिखिए लेट आर एस, ऐसे लिखना है. आर एस ऐसे बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. Be the equivalent resistance of the series combination. Got it? Next line में लिखें using Ohm's law. अब Ohm's law को यूज करें. अब ध्यान से सुना मेरी बात. अब देखिए V is the applied potential difference. Applied potential difference हमेशा किसके इक्वल होता है? It is equal to the current drawn from the battery. मतलब टोटल करंट बोल सकते हैं आप मल्टीप्लाइड विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं आप. ऑल्सो द V1 is written as द वैल्यू ऑफ द करंट is say R, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस is say R1, V2 द वैल्यू ऑफ द करंट is say I, द रेजिस्टेंस is say R2, V3 is say I मल्टीप्लाइड विद R3. गॉट इट? बेटा चारों वैल्यूज उठाइए, यहां पे डालिए. चारों वैल्यूज यहां पर डालने पर आपको मिलता है I मल्टीप्लाइड विद RS इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड विद R1 प्लस I मल्टीप्लाइड विद R2 प्लस I मल्टीप्लाइड विद R3. Okay, now this I is made common, so I multiplied with RS is equals to I multiplied with R1 plus say R2 plus say R3. Okay, this I cancelled out, so this RS is written as say R1 plus say R2 plus say R3. RS is written as R1 plus R2 plus R3. Got it? तो यहां से क्या पता लगा? पहले एक काम करें, जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर जो पता लगा बताता हूं. तो यहां से क्या पता लग रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन. ओके, इसको वर्ड्स में लिखे. नेक्स्ट लाइन में लिखे फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the series combination is equal to the algebraic sum of the different resistances present in the combination. बात समझ आ गई? ओके, क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से देखिए. Now second, parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब क्या ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे? क्लियर?
Now, let us suppose that V is the applied potential difference. Let us suppose it is the point say. Let us suppose it is the point say B. This point is N. This point is say N. Again, say I with the current drawn from the battery. बैटरी के पॉजिटिव पोल से करंट I निकालना है. वायर से करंट I फ्लो करेगा, आएगा. ठीक है. अब एक काम करें, इस वाले पॉइंट को ए बोलते हैं. इस वाले पॉइंट को हाईलाइट करें. इस वाले पॉइंट को हाईलाइट करें. तो करंट आई पॉइंट ए पर आएगा. अब करंट ने ए से बी जाना है, तो 3 डिफरेंट पाथ्स एक्सिस्ट करते हैं. तो करंट डिवाइड होगा और करंट का डिवीजन अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस की वैल्यूज पर होगा. तो यहां से करंट I1 आएगा, यहां से I2 आएगा और यहां से करंट I3 आएगा. अब ये तीनों करंट एडअप हो जाएंगे, एडअप होंगे, वायर से फ्लो करेंगे. गॉट इट? कॉपी करिए जल्दी से. नाउ फ्रेंड्स, लिखे बेटा, कंसिडरेशंस लिखें. कंसिडर the resistances R1, R2 and R3 connected in parallel with each other between the points A and B. Full stop. Let V, capital V, let V be the applied potential difference between the points A and B. Full stop. Let I be the current drawn from the battery. Let I be the current drawn from the battery. Next line में लिखें. At the point A, using principle of conservation of charges. बेटा point A पे principle of conservation of charges को यूज करें. क्लियर? ठीक है. जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज आएगा. अब दोनों साइड टाइम से डिवाइड करेंगे तो चार्ज अपॉन टाइम करंट हो जाएगा. Thus I, it will be equals to I1 plus say I2 plus say I3. समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में लिखें. यूजिंग ओम्स लॉ. रुकिए, यूजिंग ओम्स लॉ अभी मत लिखिए. नेक्स्ट लाइन में लिखें. लेट RP, ऐसे लिखें. RP ऐसे लिखिए. Let RP be the equivalent resistance of the parallel combination of the resistances. अब ध्यान से देखिए. नेक्स्ट लाइन में लिखें. यूजिंग ओम्स लॉ, V is equals to I multiplied with RP. This implies that this I can be written as V divided by RP. V divided by RP. इसी तरीके से स्टूडेंट्स I1 लिखेंगे या V डिवाइडेड बाय R1, I2 लिखेंगे या V डिवाइडेड बाय R2 और I3 लिखेंगे या V डिवाइडेड बाय R3. समझ आ गई बात? चारों वैल्यूज यहां पर पेस्ट करेंगे या चारों वैल्यूज यहां पर पेस्ट करने के बाद मिलता है V डिवाइडेड बाय RP is written as V डिवाइडेड बाय R1 प्लस से V डिवाइडेड बाय R2 प्लस से V डिवाइडेड बाय R3. इतना काम क्लियर हो गया? Now this V is made common. We are left with 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. It is V divided by R. V cancelled out. We are left with 1 upon RP. It is written as 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Got it?
तो बेटा यहां से क्या पता लगता है, यहां से पता लगता है द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द डिफरेंट रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन। समझ आ गई बात? पहले एक काम करें, जल्दी से कॉपी करिए इसको। यस यस, कॉपी लिखें। फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड that the reciprocal of the equivalent resistance of the parallel combination is equal to the algebraic sum of the reciprocals of the different resistances present in the combination. Okay? तो सीरीज में याद रखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंस रेजिस्टेंस हमेशा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा बेटा बड़ा होता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू छोटा होता है, ठीक है, किससे? सबसे छोटी वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन से। बात समझ आ गई? कॉपी करें और नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो क्वालिटी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके ओके।